میں کیسے صبر کروں، میں ٹھیک کیسے لکھوں گی آپ کو؟ میری ایک بیٹی چلی گئی ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری بچی واپس لا دیں۔ کہتی کس نے اس کو یہ انجیکشن لگایا، اس کو جا کے پوچھیں کیا کیا بچی کے ساتھ۔ میں نے کہا ڈاکٹر تو آپ نے وہ ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بچی تو ختم ہو چکی تھی، بچی یہیں پہ ختم ہو چکی تھی۔ جب میں اسے راستے میں لے کے گیا ہوں، اس کے ناک سے خون بہ رہا تھا، اس کے منہ سے خون بہ رہا تھا، جیسے دل پھٹ گیا ہو یا پھر دماغ کی نس پھٹ گئی ہو۔ 4 مہینے پہلے بھی یہی واقعہ ہوا جو میری بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ سیم اسی جگہ پہ ہوا تھا؟ ہاں جی، مطلب اسی کلینک میں ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کلینک پہ ہوا تھا، لیکن وہ ماں باپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ سر یہ ایک بچی ہے مرہا، اس کا مسئلہ ہوا ہے، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے۔ اس کے فیڈر پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، میں آپ کو لا کے دکھاؤں، میں اس کو سینے سے لگا کے رکھتی ہوں۔ میں جب دیکھتی ہوں میرا دل پھٹتا ہے۔ میری بس درخواست ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی۔ میں لاہور کے علاقے بوگی والے میں موجود ہوں، جہاں پر ان کی بیٹی کو عطائی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن دیا ہے۔ بچی کا نام مرہا ہے اور غلط انجیکشن دینے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی ہے۔ ماں باپ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں کیسے صبر کروں، میں ٹھیک کیسے لکھوں گی آپ کو؟ میری ایک بیٹی چلی گئی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو؟ یار 3را دن ہے میری بیٹی کو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچی کو کیوں لے کے گئی تھی، کیا ہوا تھا اس کے؟ میری بچی کو نا ہلکا سا فیور تھا، میں اس کو اس لیے لے کے گئی تھی، ساری شاپس بند تھی رات کے ٹائم، تو میں ڈر گئی تھی کہ میں نے کہا پتہ نہیں اس کو بخار نہیں اتر رہا، تو میں اس کو میڈیسن لا کے دیتی ہوں، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ میں لے کے گئی ہوں، شالیمار تو کھلا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے، لیکن میں شالیمار جا کے فورس نہیں کر سکتی، تو میں اس کلینک میں لے گئی کہ میں نے کہا چلے میں میڈیسن لیتی ہوں جا کے۔ میں نے پرچی بنائی ہے، 1000 روپیہ فیس دی ہے ان کو۔ اندر میں نے ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ کروایا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کیوں لے کے آئے ہیں اس کو، بچی کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا اس کو فیور ہے، یہ دیکھیں زکام ہوا ہے اور کھانسی کر رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بخار تو چیک کریں، کہتے بخار چیک کیا ہے، کہتے 101 بخار ہے۔ میڈیسن انہوں نے دی ہے، کہتے آپ کو 5 دن میڈیسن لینی پڑے گی۔ میں نے کہا ڈاکٹر 5 دن چھوڑ کے 10 دن میڈیسن دے دیں، آپ کے ہاتھوں سے شفا ملنی چاہیے میری بچی کو، کیا نا میری بچی کو آرام آ جائے۔ تو میں نے ڈاکٹر نے مجھے یہ پرچی پہ ساری میڈیسن لکھ کے دے دی۔ میرے ہسبینڈ نے بیٹی کو پکڑا، میں میڈیسن لے کے آئی ہوں، ساری کلینک کے اندر اسٹور تھا ان سے ہی لی ہیں، لے کے ساری میڈیسن بنوا کے تو میں نے کمپاؤنڈر کو لا کے دے دی یہ پرچی بھی اور یہ بھی۔ میں بچی کو پکڑ کے پہلے دوسرے کیبن میں اس کو گرنولا لگایا، جیسے بکرا ذبح نہیں کرتے ایسے پکڑ کے اس کو لٹا کے مجھے پیچھے کر دیا، اس کے فادر کو پاس بلا لیا، یہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی ویڈیو بنائی ہے، بالکل ٹھیک تھی، کہتی رہی ہے پاپا نو ماما نو۔ یہ نہیں تھا پتا کہ میری بیٹی کی یہ آخری نو ہے، میری بیٹی آخری بار پاپا ماما کہہ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں لے کے سامنے روم میں چلی گئی اس کو، تو اس کو لے کے پاپا بیٹھے ہیں اس کے، وہ انجیکشن وائٹ سے بنا کے لے کے آیا، 2 انجیکشن لے کے آیا، ڈرپ چھوٹی سی لگائی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے 1.5 سال کی بچی کو اس نے 2 انجیکشنز لگائے ہیں؟ 2 انجیکشنز لگائے ہیں، اور بچی کو کوئی اور مسئلہ بھی تھا ساتھ؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا میری بچی کو، صرف اس کو خون کی کمی تھی، بلڈ کی۔ میں نے اس کی دوسری رپورٹیں بھی کروائی ہیں، وہ بالکل ٹھیک آئی ہیں۔ دوسرے دن اس کی جب اس کو دفنائے ہیں نا 8 گھنٹے بعد، اس کا بلڈ نہیں رک رہا تھا، نہ ناک سے نہ منہ سے۔ یہ انجیکشن لگانے کے بعد ہوا ہے کہ اس کا جو بلڈ ناک اور منہ سے نکلنے لگ گیا؟ یہ ایسے ہی ہوا ہے، جب اس کا ختم ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو شالیمار ہاسپٹل میں لے جائیں، اس کی CBC کروائیں جا کے۔ جب ہم ان کے پاس لے کے گئے ہیں، وہ کہتے یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں بچی کو، بچی کا دل بھی بند کر دیا، سانس بھی بند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں میری بچی کے سانس واپس آ جائیں گے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری بچی واپس لا دیں۔ کہتی کس نے اس کو یہ انجیکشن لگایا، اس کو جا کے پوچھیں کیا کیا بچی کے ساتھ۔ میں نے کہا ڈاکٹر تو آپ نے وہ ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟
उन्होंने इंजेक्शन लगा रहे हैं, उन्होंने कहा थोड़ी देर बच्ची को रिलैक्स करें, कोई बात नहीं, उतार दिया है। जो ड्रिप के 2-3 ड्रॉप्स गए हैं ना, उधर से मेरी दो तीन ड्रॉप्स गए एक सब ड्रिप के। हाँ जी, मेरी बच्ची ऐसे उछल के पड़ी है कि उसके बाद उन्होंने उतारी है, ये लेके खड़े हैं मेरे हस्बैंड। अच्छा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा वो नीली हो रही है, इसको इधर ले आओ, इसमें नीली हो रही है, डॉक्टर इसको चेक करे, डॉक्टर ने ना इसकी वो लगा दी ऑक्सीजन फटाफट। पीछे से कंपाउंडर ने पकड़ के रखा है कि ऑक्सीजन इसको मिले। ऑक्सीजन का काम ही नहीं था, आधा उसका सांस जा चुका था। हाथों से वो करती रही है, मामा नो, पापा नो, मामा नो, वो हाथों से करती करती वो चली गई। डॉक्टर एक आइस में उसकी लाइट मारता रहा, एक दिल पे मारता रहा। दिल पे लाइट मारने का क्या तुक था? दिल पे लाइट मारता रहा। मैंने कहा डॉक्टर ये क्या कर रहे हो, उसको पुश करता रहा, उसका सांस वापस आ जाए। अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर, मैंने उसको मदीने के वास्ते दिए, मैंने अल्लाह के वास्ते दिए। डॉक्टर के रंग उड़े हुए थे, कंपाउंडर के रंग उड़े हुए थे, हमें सारी मेडिसिन दे दी, वो ड्रिप नहीं हमें साथ दी। अच्छा। अगर सच्चा था तो वो ड्रिप साथ दे के भेजता हमें कि ये ले आप जाके अपना करें, तसल्ली करें, लेकिन हमें मेरे बेटी की पड़ गई थी। मैंने डॉक्टर को अंदर कहा कि डॉक्टर आपने हमारे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है कि मेरे हस्बैंड इतने नहीं है अफोर्ड कर सके। मैं तो सामने वालों के घर से पैसे लेके आई हूँ, मैं आपसे मेडिसिन लेके आई हूँ। अगले दिन के बाद मैं सोचूंगी आज मेरी बेटी को शिफा मिलेगी तो मैं फिर है। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी हंसती खेलती गई है, बाइक पे बैठ के खुद गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं हर माँ से कहती हूँ अपनी माँ अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बचाएं, उधर ना लेके जाएं। मैं मरियम नवाज से दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी एक माँ हैं, आप मेरी आगे फरियाद सुने। मैं बहुत गरीब घर की हूँ, मेरा वैसे नहीं सोचना, लेकिन मुझे इंसाफ दिलवाएं, मुझे बेटी के पैसे नहीं आपने चाहिए। कोई कानूनी मुकदमा वगैरह किया? हम करेंगे, आज हमें पता चला, आज मुझे थोड़ी सी होश आई है, मैं करूंगी, मुझसे जो होगा मैं करूंगी, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बेटी की कब्र को सुकून मिले, मुझे सुकून मिले, मुझे सुकून नहीं मिलता। वो मेरे पास घूमती है, मेरी बेटी को तकलीफ में है, उसके नाक से खून नहीं रुक रहा था, उसके मुंह से भी खून नहीं रुक रहा था, उसका ऐसे जैसे कोई अंदर से दिल फट गया या दिमाग की नस फट गई है। डॉक्टर तुम्हारी बेटी नहीं थी, डॉक्टर भी बेटी होती तो मेरी फीलिंग को समझते, उसको इतनी हैवी डोज ना लगाते। और भी रिपोर्टें करवाई हैं, उसमें बिल्कुल ठीक आई है, मेरी बच्ची को कोई मसला नहीं है। अच्छा, कौन से डॉक्टर के पास लेके गए थे आप? डॉक्टर आरिफ के पास हम गए थे। तकरीबन रात को 1:30-2 बजे का टाइम था। तो उसको हल्का सा बुखार था, तो हम बुखार की सूरत में हमने कहा चलो चेकअप करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, हल्का सा बुखार है, चलो मेडिसिन ले आते हैं। घर पे हमने कॉल बोल दिया, हम लेके चले गए। तो डॉक्टर के पास हम गए हैं, 1000 का टोकन लिया है, डॉक्टर के रूम में गए हैं। डॉक्टर ने बुखार चेक किया है, 101 बुखार है बच्ची को 101 बुखार है। कहते चलो मैं एक ड्रिप लिख रहा हूँ, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको हल्की सी चुभेगी। अच्छा। तो हमने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं, आप ड्रिप लिखते हैं। तो बच्ची को बरनोला लगाने के लिए लेके आए हैं, ठीक है, हैंड पे बरनोला लगना था। बच्ची को ऐसे दोनों टांगों से पकड़ा है, अच्छा। ऐसे लटा दिया है। बच्ची कह रही है नहीं पापा नहीं, नहीं पापा नहीं। तो बच्ची को उसने बरनोला वगैरह लगा दिया। खैर ड्रिप के लिए हम अंदर बेड पे ले गए हैं। तो उन्होंने, बहुत ही मुश्किल है कि एक बच्ची जिसको आपने पाला हो, 1.5 साल अपने पास रखा हो, और उसकी इस तरह डेथ हो जाए, और इतने खौफनाक तरीके से हो कि उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा हो। बहुत मुश्किल होता है ऐसी औलाद को दफनाना। तो हम बेड पे लेके गए हैं। तो बेड पे उन्होंने मतलब कि ड्रिप लगानी शुरू की है। तकरीबन 2 से 4 ड्रॉप्स बच्ची के जिस्म में मतलब के मेल्ट हुए हैं। तो बच्ची वहीं पे तड़पना शुरू होगी, बच्ची नीली होना शुरू होगी। अच्छा। बच्ची नीली होना शुरू होगी। आपकी वाइफ ने बताया कि आप दूसरे डॉक्टर के पास भी गए थे शालीमार, ऐसे ही है? जी। तो जब आप उस डॉक्टर के पास लेके गए तो क्या आपने उनको ये दिखाया कि ये चेक करें दवाइयाँ ठीक दी हैं या नहीं? जी, हमने ये चेक करवाया कि ये कहाँ से आप लेके आए, बच्ची का दिल भी बंद है, बच्ची की धड़कन भी बंद है, तो ये आप क्या अब कोशिश कर सकते हैं। तो जब उन्होंने कोशिश की, बच्ची तो खत्म हो चुकी थी, बच्ची यहीं पे खत्म हो चुकी थी। जब मैं उसे रास्ते में लेके गया हूँ, उसके नाक से खून बह रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे दिल फट गया हो या फिर दिमाग की नस फट गई हो। तो अभी हम डॉक्टर को फोन करें, आपके सामने फोन करते हैं, अगर वो उठाते तो उनसे बात करते हैं, या आप पकड़ेंगे प्लीज। 4 महीने पहले भी ये वाकया हुआ था। क्या हुआ?
4 महीने पहले भी यही वाकया हुआ जो मेरी बच्ची के साथ हुआ है। सेम इसी जगह पे हुआ था? हाँ जी, मतलब इसी क्लिनिक में हुआ था इनके साथ? क्लिनिक पे हुआ था, लेकिन वो माँ बाप चुप करके बैठ गए हैं। तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया? नहीं, मुझे बाद में पता चला जब मैं अपनी बेटी को कब्र में छोड़ के आ गई। जी जी जब मैं अपनी बेटी को कब्र में छोड़ के आई हूँ ना, जी मेरे हस्बैंड छोड़ के आए हैं, तब मुझे किसी ने बताया 4 महीने पहले इन्होंने एक बच्ची भी मारी थी। चंद पैसों के लिए क्या क्या करते हैं ये आप इस नंबर लिखिएगा। आप दोबारा उस क्लिनिक पे गई? मैं आज गई थी उस क्लिनिक में। अच्छा। मैं बोल के आई हूँ, उधर सारी माएँ बैठी थी। मैंने कहा क्यों बैठी हो आप लोग, अपने बच्चों को बचाओ ना, आप अपने घरों में लेके जाओ इनको, किसी और डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ। उधर एक डॉक्टर थी कि पता नहीं कौन थी, लेडी थी, कहती इसको यहाँ से निकालो, इसको 5 लाख मिलेगा तो इसको सुकून मिलेगा। मैंने कहा मैं अपनी आप बच्ची लिखे का नंबर। सौदा नहीं करने आई। अच्छा, तो वो ये कह रही थी कि 5 लाख मिलेगा तो आप बच्ची बेच देंगे, बच्ची का खून बेच देंगे? हाँ, मैं बच्ची को बेचने नहीं गई, मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ लेने गई हूँ। ठीक। वो लहदा बात है कि मरियम नवाज मेरे साथ कुछ साथ देगी तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को कभी ऐसे नहीं बेचूंगी। मैं अपनी बच्ची का सौदा नहीं कर रही, मैं इंसाफ चाहिए मुझे। नाज़रीन, हम डॉक्टर को कॉल मिला रहे हैं, देखते हैं, पूछते हैं उनसे डिग्री इनकी अपनी भी है या नहीं है। डॉक्टर आरिफ बात कर रहे हैं? जी बताएं। सर, ये एक बच्ची है मिरहा, उसका मसला हुआ है, वो उसकी डेथ हो गई है गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से। हाँ बेटा, मैं आपको गया था, वो आए थे। आप कौन बोल रही हैं? मैं मीडिया से बात कर रही हूँ। अच्छा, गलत इंजेक्शन खोने लगा बेटा, उसको इंजेक्शन उसको जो है वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। वो अपना इंजेक्शन उसको रोसेफिन लगाया, उसको सालुगलत लगाया और अपना लगाया। बच्चा फायरोज था, वो मेरा ख्याल 10 मिनट भी नहीं रहा तो वो गैस करना शुरू हो गया, उसको आंखें वगैरह दिए, अब किया है, तो सर्वाइव नहीं कर सके बेटा। सर्वाइव नहीं कर सके? चलें ठीक है, हम इंशाल्लाह टीम के साथ आपकी तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो उसकी जो चीज़ें वगैरह थी उनके साथ उनका क्या किया आपने, किसी को दे दी? नहीं, सारी पड़ी हैं, कपड़े भी, हमने शादी पे जाना था, मैं उसके न्यू कपड़े लेके आई। न्यू कपड़े पड़े हैं, टॉयज हैं, उसके फीडर पड़े हुए हैं मेरे पास। मैं आपको ला के दिखाऊं, मैं उसको सीने से लगा के रोती हूँ। मैं जब देखती हूँ मेरा दिल फटता है। वो आपकी पहली औलाद है? वो मेरी पहली बेटी है, मेरा एक 4 साल का बेटा भी है। नाज़रीन, छोटी सी 4 माह का मेरा बेटा है। वो 1.5-2 माह की मेरी बेटी हो गई थी। बड़ी हंसती खेलती थी, बड़ी बातें करती थी, वो हर किसी के साथ फ्रेंकली हो गई थी। 2 साल 1.5 साल की हो गई थी वो, तो बहुत फ्रेंकली थी। वो किसी के साथ भी हंसती खेलती थी, वो किसी को दुखती नहीं थी। वो इतना प्यार करती थी ना कि वो ऐसे बैठती थी तो वो हंसना शुरू कर देती थी। अब वो मुझे नजर ही नहीं आती है, मेरे दिल को। नाज़रीन, छोटा सा फूल जो यहाँ से चला गया, रुखसत हो गया है, और गलती भी अताई डॉक्टर की, और माँ वो जिसको हर टाइम अपनी बच्ची की चीजें पड़ी हुई नजर आती, क्या उसकी दिल को तकलीफ नहीं होती होगी? उसके कपड़ों को देख के तकलीफ नहीं होती होगी? उसके फीडर को, उसके जूतों को देख के तकलीफ नहीं होती होगी कि मैं इसी फीडर में दूध बना के देती थी, मैं यही कपड़े इसको पहनाती थी, नहलाती थी, हर काम मैं इसको छोटा छोटा करती थी? क्या उस माँ के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? हमारा कानून कहाँ है? हमारे सीसीडी जो अदारे बनाए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अदारे हैं, लेकिन अभी वो यहाँ पर खामोश क्यों है? क्यों इस तरफ क्यों नहीं नजर डाल रहे? मेरी बस दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मरियम नवाज से बार बार रो के इल्तिजा करूंगी, मुझसे राब्ता करे, मेरे साथ बात करे, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची को सुकून मिले, मुझे सुकून, मेरे दिल को सुकून आए। सारी उम्र मुझे नजर नहीं आनी तो मैं क्या करूंगी? डॉक्टर की बेटी नहीं थी, डॉक्टर के सीने में दिल नहीं था। बिल्कुल ऐसी है। नाज़रीन, माँ बाप बहुत परेशान है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस डॉक्टर को भी पकड़ें। वादा नहीं करते, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इस डॉक्टर के क्लिनिक पे भी जाया जाए, उससे पूछा भी जाए, उसकी डिग्रीज भी देखी जाए कि आखिरकार उसके पास डॉक्टर की डिग्री है भी या नहीं। इसी के साथ अपनी मेजबान मोमिना लिख दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।